Welcome back. This is lecture 16 of PGBP and this was CMA Intermediate June 2022 attempt. ठीक है, so ये lecture 16 है हमारा PGBP का. ठीक है, so हम problem कर रहे थे. ठीक है, हम ये वाला problem कर रहे थे, that is bifurcation of depreciation in case of amalgamation, demerger and succession. Okay, ये problem हम कर रहे थे. Okay, this was the problem and so in this problem on November 29th, sole proprietary concern got converted to a company. Okay, so November 29 was the date of conversion. So what I told you is one day before this will always go for the previous company. Okay, so 1st April to November 28th 2021 will be the days of previous organization, which is AN company, and November 29 to March 31st 2022 will be for the new company. Okay, so in this case the problem what they have solved here, because just they have done a minor mistake. Okay, so it should have been, the days should have been 243 for the sole proprietary concern and 122 for the company. Okay, the way I've told you, calculate and see, this should have been there. Okay, so what they have used is 242 and 123. That's the only difference. Okay, so what you have to do in the examination is count as per this. It's just a counting mistake. Okay, from their end. Okay, so now you have got these assets. So now what you have to do is, in such problems, first thing, just consider that there is no succession or no amalgamation. How you will normally compute depreciation? Think that there is no amalgamation on November 29. It's the same company continuing. Just make that assumption and calculate depreciation. So here that's what we have done. With that assumption, we have calculated it. Okay, and there was one asset purchased by this AN company, which was on 15/10. Okay, because it is less than 180 days now. If I'm assuming here that there is no amalgamation, okay, or no succession, that means what is the total number of days for this 15/10 to the end? It will be less than 180 days. Okay, whatever it is, right? Less than 180 days. So which is why for this 1 lakh we have taken depreciation 7,500. So 15% upon 2. Okay, so till here, does anyone have a doubt how this depreciation was calculated? यहाँ पे किसी को डाउट है? यहाँ तक बस. Bala? No, sir. Bala? Is this much clear how we got it? This was opening WDV. Okay, and we added the purchases, which was 1 lakh here. Okay, and then what did you get? This was the balance. Okay, was there any sale? No. So 3,000 was the balance of asset in the end. Okay, and depreciation was calculated as on 2 lakh it was 30,000 and on 1 lakh it was 7,500. Okay, is this part clear to everyone? Only till this part. Yes, sir. Okay. Bala, is this part clear? Till here, is it clear? Okay, so now what we have got is we have got the total depreciation here. ठीक है, now हमारे पास अब वो depreciation है जो हमको bifurcate करना है. तो फिर आप बोलेंगे सर what about this? Company added another plant worth 50,000. ठीक है, इसको तो bifurcate करना ही नहीं है ना, ये तो कंपनी का है. The company got it. The previous organization will not get any depreciation out of this. तो ये तो bifurcate करना ही नहीं है. So only thing we have to bifurcate is this. इसी को bifurcate करना. ओके, तो चलो अभी हम आगे चलेंगे यहाँ पे. So अब bifurcation के लिए जस्ट तीनों का जो depreciation लिए थे वही ले लेना है सीधा. There is no problem. ओके, टेक दिस, ये ले लो आप
This is the depreciation figure of all this. Just multiply by the days ratio. ठीक है, 242, so consider this as 242 for now. ठीक है, जैसे हमने we had calculated, इसमें 243 आता है, right? 243 is the right ये, but चलो ठीक है, इसी को लेके चलते हैं. Okay, the figures will match, that's why. So 242 upon 365, इस रेशियो से तीनों का आप ये मल्टीप्लाइड, ठीक है, आपको ये 3 आ जाएगा. सेम थिंग ये डेप्रिसिएशन कंपनी का जब निकालेंगे ना, बस ये 365 minus 242 will be your numerator here in place of 242. ठीक है, तो उससे हमको ये 3 मिल जाएगा. सेम प्रोसीजर. ओके, दिस इज हाउ यू विल गेट दिस सेम प्रोसीजर फॉर द कंपनी. Now last is the new asset, because new asset was not with us for 365, so you cannot divide by 365, correct, because it was not with us for 365 days. So just take how many days it was with you. It was 45 days it was with you. Okay, and total number of days is 1510. On 15th it was acquired. See till March 31st 2022, it is 168 days. ठीक है, एक बार देख लो आप, भरोसा नहीं है कि कुछ 167 169 हो सकता है, एक बार चेक कर लेना. ओके, so this will be 7500 into 45 upon 168. तो ये आपका ये मिल जाता है. For company what we will do, ये 168 minus 45 करोगे तो you will get the days of company. ठीक है, that days upon 168 will do to bifurcate for company. ठीक है, ये क्या और एक इजी मेथड, और एक इजी मेथड क्या हो सकता है बाइफरकेट करना है तो आपके पास टोटल डिप्रिसिएशन तो यहाँ है ना, और आपको नया डिप्रिसिएशन ये है, तो ये बस सीधा दिस माइनस दिस कर दो, आपको आ जाएगा. जस्ट डू दिस माइनस दिस माइनस दिस, बस टोटल डिप्रिसिएशन इज सेम फॉर बोथ ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, तो सॉरी ये हो जाएगा, ये 30,000 माइनस 19,980 रहेगा थर्ड वाला. ओके, एंड दिस विल बी 7,500 माइनस दिस. ठीक है, तो चलो, तो ये हो गया हमारा इसका योर सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न को कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा, दैट वी हैव फाउंड आउट. वी हैव फाउंड आउट व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन फॉर सोल प्रोप्राइटरी. लेट्स मूव टू द कंपनी नाउ. ठीक है, now for company just do the same thing as I said. ये first three will not change. ठीक है, as I said earlier, बस यहाँ पे it will come as 123. ठीक है, how it came I explained you already. You can ask me if you do not understand still. ठीक है, तो ये हो गया कंपनी का, ये पार्ट हो गया. What about that new asset? ये न्यू में भी वही करना है आपको. ठीक है, into 123 upon 768 168. ठीक है, ये हो जाएगा 5491. ओके, सो ये हो गया. अब इसके बाद में ये हो गया सारा डेप्रिसिएशन. नाउ आफ्टर कन्वर्शन जो प्लांट है, ओके, दैट विल बी ओनली फॉर कंपनी, करेक्ट. सो वो उसका आपको याद होगा, तो उन्होंने डेट नहीं दिया हमको. डेट नहीं दिया तो कैसे हम डेप्रिसिएशन निकालें उसका. Sir, considering it that we have purchased it on 29th November. Yes, very good. So consider, no, we are actually not considering that we are purchased on 29th, but what we know is that if you purchase it any time after October 3rd, you will only get 50% depreciation. Okay, so even if you purchase on March 31, 2022, you'll still get 50% depreciation. So as we know this date, which is after October 3rd, so even though we do not know the exact date of purchase, we know that only 50% is applicable. ठीक है, हमको ये मालूम है कि 50% ही मिलेगा, क्योंकि ये नवंबर 29 को खरीदा गया है, which is after October 3rd. And October 3rd is 180 days exact आता है October 3rd. Okay, October 3rd 2021. So 1st April 2021 till October 3rd 2021 days total करेंगे आप, तो आपको मिलेगा 180 days. So even one day later if you purchase, it will be less than 180 days. ठीक है, okay. So इसीलिए जैसा next plant is also, it is also 15% same, उसका भी 50% you will take, you will get this depreciation. बस हो गया, that's all. इसको total कर दीजिए, you will get the answer.
समझ में आया ये प्रॉब्लम? एनी डाउट्स इन दिस यू कैन आस्क मी। ये एक अच्छा बड़ा, जैसे ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाए ना तो आपको इन्हें कम से कम 8-10 मार्क्स से कम का तो आएगा ही एटलीस्ट। सिर्फ टैक्स में ना होते आपका, अगर दो बड़े प्रॉब्लम आपने कर दिए अगर ओवरऑल इसमें, टू बिग प्रॉब्लम्स इफ यू हैव डन, then definitely you'll score above 55. Above 50 is guaranteed if you get two right, just two right. ठीक है? और आपका इसमें टैक्स में भी होता है, एक बड़ा प्रॉब्लम आपका राइट हो गया ना, वन बिग प्रॉब्लम आपका राइट हो गया तो आप 40 से कम में नहीं आएंगे कभी। ओके, इफ वन बिग प्रॉब्लम लाइक दिस इज राइट, बाकी छोटे मोटे कुछ ना कुछ मिल ही जाते हैं, यू विल नेवर गो बिलो 40, इतनी गारंटी। और दो बड़े प्रॉब्लम हो गए तो आप 50 के ऊपर तो एनी टाइम इजीली विल बी अबव 50। चलो ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट इससे। ठीक है, नाउ इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया। ठीक है, दिस इज सेक्शन 32 AD। ठीक है, इसके कंडीशंस इफ यू सी इट विल बी वेरी सिमिलर टू कंडीशंस ऑफ एडिशनल डिप्रिसिएशन। ठीक है, एडिशनल डिप्रिसिएशन का जो सेकंड पार्ट था आपको याद होगा, वी टॉक्ड अबाउट नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, एडिशनल डिप्रिसिएशन इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, जब हमने बोले थे कि इन प्लेस ऑफ 20% यू विल गेट 35% डिप्रिसिएशन। ठीक है, यू रिमेंबर दैट? ठीक है, तो इसके कंडीशंस बिल्कुल ही सिमिलर हैं। फॉर इन्वेस्टिंग इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, सेक्शन इज 32 AD। ये सब these are all special sections। ठीक है, so it's better to remember these sections। ये वाले जो तो मैं जहाँ जरूरत नहीं है मैं बोलता भी नहीं हूँ आप लोग को, राइट? तो ये वाले सेक्शंस जो है डेप्रिसिएशन ऑनवर्ड्स जो हम कर रहे हैं आपको याद रख रहे हैं। आगे के व्हाटएवर इज नॉट इंपॉर्टेंट आई विल टेल यू, वो सब आपको नहीं करने की जरूरत नहीं। ठीक है, और इसके सब जो है ना मेन सेक्शंस यू हैव टू रिमेंबर 32 AD, बस इसका सब सेक्शंस ये सब की कोई जरूरत नहीं। Okay, you don't need subsections and all that, just the main section if you can remember. Now see, conditions which have to be satisfied is SSC has set up an undertaking or enterprise for manufacture or production of any article or thing. ठीक है, notified backward area of Andhra Pradesh, Bihar, Telangana or West Bengal. Okay, same states. Okay, and acquisition and installation of new assets during 1/4/2015 to 31/3/2020. Okay, this date is also same. ठीक है, I will just show it to you, वो एक बार बता देता हूँ आपको and you will be more comfortable. ठीक है, I'm just taking you to, ठीक है, this is the one. ठीक है, so ये this was our depreciation, additional depreciation. ठीक है, additional depreciation हमने किया and then we did, that was 20% on actual cost, है ना? Then we did in additional depreciation in notified backward area which was 35%. ठीक है, and this were the, ये था। यहाँ पे देखिए एक ही फर्क है यहाँ और वहां में, यहाँ पे सेटअप on after 1/4/2015, this date is given here, there setup date is not given उसमें, that's only one this thing। but आप देखिए acquires and installs new plant or machinery in this date 1/4/2015, 31/3/2020, same date, same notified backward area of Andhra, Bihar, Telangana, West Bengal, same। ठीक है, sets up undertaking for manufacture of any article or thing। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने बोले थे other than ships, aircraft, etc., what were those exception points where it was not applicable? Even that is same there actually, I'll show you। ठीक है, वो है ships and aircrafts, that new article should not be, जो आपने खरीदे हो new machinery should not be ships and aircrafts, second hand plant or machinery। ठीक है, plant or machinery installed in office premises, residential accommodation or guest house, office appliances or road transport vehicle। ठीक है, and plant and machinery which gets 100% deduction, एक one shot में 100% deductions will be there in certain cases। okay, so वो हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ही साथ 100% मिल जाता है।
ठीक है। अब उसके जिसको ऑलरेडी एक साथ 100% मिल रहा है उसको देन वाई टू गिव एडिशनल डिप्रिसिएशन, है ना। ये यानी ये क्यों देना, एडिशनल क्यों देना, तो ही विल नॉट गेट दिस। ठीक है, तो इसलिए ये भी एक्सक्लूडेड था। तब ये जो कंडीशंस है ना, आपको दिस सेम कंडीशंस उसमें भी है, बस इतना आप ध्यान में रखना है। ओके, इसमें सो दिस इज, ये तो आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन था। ओके, और एडिशनल डेप्रिसिएशन में acquired and installed after 31st March 2005 था। ओके, बस acquired and after, लेकिन आपका जो दिस इज, ये जो आपका नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में जो था ना, सेटअप ऑन और आफ्टर 1/4/2015, बिजनेस इज सेटअप ऑन और आफ्टर 1/4/2015, दिस वन डेट है। हम जो अभी देख रहे हैं 32 AD, उसमें बोला गया है सेटअप एंड अंडरटेकिंग फॉर एंटरप्राइज फॉर मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल अर्थ, तो बस डेट मेंशन नहीं किया कुछ, अदर देन दैट सब सेम है, हम देखेंगे। ठीक है, वहां लेके जाता हूँ आपको। ठीक है, सो कम बैक हियर टू दिस सेक्शन, ये हमारा आपका, ये है आपका 32 AD। ओके, हियर we've come back to this. Okay, so here क्या था, conditions to be satisfied, SSC sets up an undertaking। ठीक है, वो डेट नहीं दिया है, बस 1/4/2015, the date is not there, बस इतना ही है। States are same। ठीक है, ये सब सेम है, this is same। New asset, it should be new plant and machinery, there also it was there, other than ship and aircraft। ठीक है, इसको यहाँ पे क्या किया है, इसमें अदर देन शिप एंड एयरक्राफ्ट या ब्रैकेट में दिया है, और यहाँ पे बोला न्यू प्लांट और मशीनरी बट डज नॉट इंक्लूड, ये सब दिया है। ठीक है, बेसिकली ये अदर देन मतलब ये भी यहीं पे इंक्लूडेड है, ये जो है ना, सो दिस इज आल्सो एक्चुअली पार्ट ऑफ द एक्सेप्शन हियर। ये सब क्या है ना, ये जब फ्रेम करते हैं तब दे शुड टेक केयर कि इनका भी वही उद्देश्य होगा एक्चुअली। ये जो यहाँ पे 1/4/2015 नहीं लिखे ना, बोलना वही चाहते होंगे 1/4/2015 से, वो निकल गया होगा, रह गया होगा। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे इसमें ब्रैकेट में डाल के करके इट शुड कीप इट कंसिस्टेंट, सो स्टूडेंट्स को भी अच्छा रहता है और इवन जो लॉ को यूज करते हैं उनके लिए भी अच्छा रहता है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे एक ही चीज का अलग अलग नाम है। ठीक है, जैसे है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे समझ लीजिए, बेटा बेटा बोलते हैं ना सन को, सन इज बेटा। ठीक है, तो बिहारी में बोलते हैं ना कि ससुर का नाती, ससुर का नाती बोलते हैं ना, तो ये इसका क्या मतलब है, ये भी मेरे से सोचेंगे हम बैठ के कि क्या है, कौन सा हमारे ससुर का नाती बोले तो अच्छा, फिर ध्यान में आएगा हमारा बेटा है। तो ये ऐसा काम किया और कुछ नहीं। ठीक है, इसको यहाँ पे ब्रैकेट में डाले हैं, अदर देन ये, और फिर ये किए हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सब जो है इसकी जरूरत ही नहीं है, मेरे को बस फॉर्मेटिंग देखना पड़ेगा, तो मैं नीचे कर दूंगा उसको। ठीक है, क्योंकि मैं एक लाइन डालता हूँ तो सब नीचे आ जाते हैं ना, सो आई जस्ट सी एंड डू इट लेटर। ठीक है, तो बेसिकली ये अदर देन शिप एंड एयरक्राफ्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस एक्सेप्शन ओनली। अब यहाँ पे क्या क्या है, सेकेंड हैंड प्लांट और मशीनरी। ठीक है, वहां भी था, राइट। प्लांट और मशीनरी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रीमिसेस, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, गेस्ट हाउस, सेम एज दैट। ठीक है, एक चीज पढ़ रहे हो आपको डबल वैल्यू मिल रहा है, एज सिंपल एज दैट। पीजीबीबी में ऐसा काफी होता है। ओनली थिंग इज दैट आपके माइंड में वो सब फिट रहना चाहिए। अच्छा, इसमें वो अगर रहा ना, वन थिंग, जैसे आपने अच्छे से एक चीज पढ़े हैं उसका वैल्यू यू विल गेट ऑल, और 2 बार उसका वैल्यू मिल जाएगा पीजीबीबी में। ओके, यू विल गेट इट्स वैल्यू मोर देन वंस। एनी ऑफिस अप्लायंसेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बोला है, और इन एडिशनल डिप्रिसिएशन के क्लॉजेस में जो है दे ओनली से ऑफिस अप्लायंसेस, वर्ड यूज्ड इज ऑफिस अप्लायंसेस, लेकिन आपका कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वैसे भी ऑफिस अप्लायंस के अंदर माना जाता है। ओके, so आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलता लैपटॉप और इसके ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर, यू डोंट गेट। सो बेसिकली ऑल्दो यहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग, ये वहां पे नहीं लिखा है, बट है वो एक ही पॉइंट, देयर इज नो डिफरेंस हियर एज सच। ठीक है, एनी व्हीकल, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल आपका, ओके, 100% डिडक्शन वाला पॉइंट, इट्स ऑल द सेम। ठीक है,
पूरा बस वही है एक्चुअली स्पीकिंग। आप पूछो ना, दिस इज ऑल्सो मेंट फॉर दिस नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ आंध्रा, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। सो है वो वही चीज है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, वहां पे उनको 40% मिल जा रहा था, दे गॉट एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 40%। उसके अलावा फॉर द सेम थिंग दिल गेट एडिशनल डिडक्शन। यहाँ कहीं ये नहीं बोला है कि उसको ले लिया तो ये नहीं ले सकता, ऐसा नहीं, ये और मिल रहा है, दे आर गेटिंग दिस मोर। सो फॉर डूइंग बिजनेस इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया गवर्नमेंट इज गिविंग सो मच प्रेफरेंस, ठीक है। अभी तो खैर इसका टाइम हो गया है, ठीक है। इसका it was a period till 31/3/2020 which is no longer now, ठीक है। तो हाँ, क्वांटम ऑफ डिडक्शन, ठीक है, कितना 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। तो वहां के 40% भी उठा लो एडिशनल डिप्रिसिएशन के, प्लस ये भी ले लो 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। Okay, so you'll get that 40% also of additional depreciation for notified backward area. You'll get this also. But these are all independent sections. This is not saying if you take that you will not get this. That is not saying that, that is not highlighting this, and this is a special provision. Okay, when special provision is not stopping you from taking the advantage of general provision, then that means you get both. ठीक है, आपको दोनों मिलते हैं। चलिए, इसमें बस इतना एक और पॉइंट है। नाउ दिस, बिकॉज दिस इज अ स्पेशल डिडक्शन गिवन, राइट। तो इसमें एक लॉक इन पीरियड है कि आप एसेट को जो है 5 साल तक आप बेच नहीं सकते, ठीक है। यू कैन नॉट, इफ न्यू एसेट इज सोल्ड और ट्रांसफर्ड, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर अमेलगमेशन, डीमर्जर, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज से इट इज सीन एज कंटिन्यूएशन। ओके, इट इज नॉट सीन एज सेल, ठीक है। कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज चेंज्ड इन दिस, ठीक है। तो ये चलता है आपका अमेलगमेशन, डीमर्जर, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन इज ओके, ठीक है। सो यहाँ पे क्या नहीं चलता है आपका, इफ इट इज सोल्ड और ट्रांसफर्ड, ठीक है, within 5 years from the date of installation, 5 years from the date of installation, ठीक है। देन आपको जो डिडक्शन पहले मिला है ना, वो इट विल बी पीजीपीपी में चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली क्या बोल रहा है ये देखिए, अब आपको ये जो डिडक्शन दिया है ना उसमें 15%, ठीक है। दिस इज योर से डेबिट and this is your credit, ठीक है। ओके, सो नाउ यू हैव बीन गिवन अ 15% डिडक्शन, ठीक है। तो मान लो आपने 15 रुपीज का, 100 रुपए का आपने एसेट ले लिया, 100 रुपीज एसेट यू हैव टेकन, यू हैव बीन गिवन 15% डिडक्शन, 100 रुपीज इज योर एसेट वैल्यू। ओके, 100 रुपीज इज योर एसेट वैल्यू, ठीक है। 15 रुपीज यू गॉट डिडक्शन, बट देन यू सोल्ड इट आफ्टर 2 years, you cannot sell it for 5 years, you have sold it within 5 years। तो आपको 100 का कितना मिला, आपको 120 में आपने बेच दिया, ठीक है। You have sold 100 रुपीज एसेट इन 120। पहला काम क्या होगा, ये जो आपको मिला था इसको कैंसिल करना है, डिडक्शन, ठीक है। कैसे कैंसिल होगा, दिस 15 विल गेट क्रेडिटेड, ठीक है, यानी पीजीपीपी में चार्ज हो जाएगा, देन ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। वो फर्स्ट थिंग है। सेकंड थिंग, आपको कैपिटल गेन भी हुआ है ना, 20 रुपीज इज योर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, दिस विल ऑल्सो बी चार्ज अंडर कैपिटल गेन। 20 will be charged under capital gain and this 15 will be charged back. So basically it will be treated as your income from business, ठीक है। These two treatment will happen, okay, ठीक है। वही बोल रहा है, ये वाले पॉइंट, अंडरस्टूड। तो ये बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन को जस्ट दे हैव गिवन, आपको दो टाइप्स बताए हैं यहाँ पे, ओके। कई टाइप के होते हैं रीऑर्गेनाइजेशन। So this is your one is conversion of firm, a proprietorship company concern into company, or conversion of unlisted company or private company into LLP. So ये क्या याद रखना, conversion of unlisted company or private company into LLP, ठीक है, that is also a business reorganization, ठीक है। ओके, सो और अब एक चीज है, अगर amalgamation कर दिया, अगर
वी हैव डन अमेलगमेशन, तब क्या होगा, स्टिल 5 years लॉक इन पीरियड जो है आपको दिया गया है ना, दैट विल स्टिल बी देयर। लेकिन ये होगा कि सपोज आपने यू हैव हेल्ड, ठीक है, ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, ठीक है, आपने एसेट को 2 years रखा, you bought that asset after installation, it is 2 years now your organization succession has taken place and it has become company. So now the company will have to keep it for 3 years, ठीक है, so that the total will be 5 years, ठीक है, 3 years के बाद कंपनी बेच सकते हैं। ओके, so amalgamation वगैरह ये सब, जैसे हमने यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या किए थे, we assume that there is no succession और हमने डेप्रिसिएशन निकाले, ठीक है, फिर दोनों में हमने अपोर्शन की, करेक्ट, we found out the depreciation considering there was no amalgamation, ठीक है, तो it is always considered that जो भी आपके rules regulations है in terms of amalgamation, the total thing should be fulfilled. If some part has been fulfilled in your old organization, remaining part will be fulfilled in amalgamated company, ठीक है, so ये है इसका, understood, ठीक है, that is that second point. तो चलो ये वाला सेक्शन हमारा हो गया, 32 AD is over. Okay, so next one में हम जाएंगे अभी. Okay, it's called as special deduction for SSC engaged in tea, coffee, rubber growing and manufacturing business, ठीक है, so ये आपका 33 AB and rule 5 AC, इसमें उतना मेहनत नहीं लगेगा आपको for learning sections, ये सब serial है actually. Okay, तो हम देखेंगे बाद में, हम I'll take you through this, ठीक है, और इसका एक और चीज है, मैं सोच रहा था आपका कि पीजीबीपी अभी जितना हुआ है इसका भी एक टेस्ट हम लोग ले लेंगे, सो कल तक जितना होता है टिल टुमारो व्हाटएवर पीजीबीपी इज ओवर, ओके, आई विल गिव यू सम डेज, यू कैन ऑल टेल मी व्हेन यू वांट द टेस्ट, उस दिन हम टेस्ट ले लेंगे, ठीक है सर, इफ पॉसिबल जितना हुआ है उसका एक क्विक रिवीजन हो सकता है, मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा है फास्ट फॉरवर्ड वे में हमने सब डेप्रिसिएशन पढ़ लिया है, तो थोड़ा सा एक बार आप अगर क्या कीजिए ना, क्योंकि इसके रिवीजन में भी हमको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आगे भी हमको बहुत करना है, ठीक है, तो इसका रिवीजन बाद में करेंगे, एज फॉर अभी टाइम बिंग के लिए आप क्या कीजिए, यू कैन जस्ट गो थ्रू एंड रिवाइज यूजिंग द वीडियोस, ठीक है, आप वीडियो में जाके आप रिवाइज कर लीजिए टेस्ट पर्पस के लिए, ठीक है, फिर मैं वापस आऊंगा जरूर एक बार रिवीजन के लिए, नॉट एट दिस स्टेज, क्योंकि अभी कुछ टारगेट्स पूरा करना है हमको, और दूसरी बात है आपका नेक्स्ट वेडनेसडे जो है ना, नेक्स्ट वेडनेसडे आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल बी रिवाइज्ड इन ड्यूरिंग नेक्स्ट वेडनेसडे, ठीक है सर, एक ही वीक में हम बहुत सारे रिवीजन्स ले लेंगे ना, देन कोर्स विल नॉट मूव अहेड, ठीक है, तो ये आप एक बार वीडियो से आप देख लें, ठीक है, आपको कुछ अगर डाउट होता है और समथिंग लाइक दैट वी कैन डिस्कस फर्दर, कुछ है तो मैं 1-on-1 बता दूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट फॉर्मल रिवीजन अगर मैंने कराया तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, जस्ट गो थ्रू द वीडियोस वंस, आप कीजिए, ओके, इफ देयर इज समथिंग, कुछ इसमें और इसमें कुछ डाउट हो रहा है, आपको कैच नहीं हो रहा, समथिंग लाइक दैट, देन वी कैन सेट अप समथिंग। व्हाट इज माय कंसर्न इज कि हमने एक टेबुलर फॉर्म में बहुत सारी कंडीशंस पढ़ी हुई हैं रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, उनको कैसे याद रखेंगे? हाँ, तो आपको what you should do is you should just revise these things once. Have you revised whatever we have done so far? एक दो बार तो भी आपने रिवाइज किया है इसको? सेक्शन को लेकर उसका प्रोविजन अपने मुंह से बोलो, अपने आप हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे जैसे दो चीजें हैं, एक है जो आपको खुद करना है, वो आपको खुद करना है, ठीक है, वो मैं नहीं कर सकता, राइट, तो आपको क्या करना है, आपको जितना मैंने अभी तक कराया है, ये वीडियोस पीजीबीपी इतना कॉम्प्लेक्स चैप्टर है कि आपको 2 बार रिवीजन करना पड़ेगा, तो आप ईमानदारी से मुझे बताओ कि क्या आपने 2 बार रिवाइज किए हैं इसको? हैव यू रिवाइज्ड ऑल वीडियोस ट्वाइस, हिमांशु? सर फॉर पीजीबीपी यस,
So if No, you have sir. not revised twice, na, it's unfair for you to ask me to revise it again for you. It will be like आपका काम मैं कर रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा. ठीक है, जो जितना टाइम आपको देना है वो तो आपको देना ही देना है. ओके, तो वो आप दीजिए खुद. ठीक है, ये आप अभी भी है ना, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कितना काफी कुछ और करना है हमको. ओके, तो ये सब चीजें जो पीछे जो की गई है उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा और आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे. ओके, तो ये तो बहुत स्पून फीडिंग हो जाएगी. ठीक है, बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग होगी ना, देन यू विल नॉट डेवलप एज अ गुड स्टूडेंट एज वेल. क्योंकि जो आप सोचना है वो भी अगर मैं सोचने लग गया वो भी चीज, सो एज अ स्टूडेंट वो बात नहीं आएगा. जैसे वही चीज मैं आपको उसमें भी बोलता हूँ बाकी चीजों में, व्हेन यू आस्क दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन है, ये क्यों हुआ है या वगैरह, जो थिंक अबाउट इट वंस. एक बार हमने सोच लिए, नहीं समझ में आ रहा है, फिर पूछना चाहिए. बट ये तो है, आपको ये वीडियोस को एटलीस्ट 2 टाइम्स यू हैव टू रिवाइज. वो टाइम और था जब आपके पास वीडियोस नहीं हुआ करते थे, तो मैन्युअली ज्यादा रिवीजन करना पड़ता था कि स्टूडेंट्स के पास वो रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे. ठीक है, तो आपको आप टाइम दीजिए और इसको 2 बार आप रिवाइज कीजिए एंड देन यू टेल मी. आप ही मुझे बताएंगे कि कितना आपको पकड़ लग रहा है उसमें. ठीक है, ओके हिमांशु, I want you to revise whatever I have done. I want you to revise it twice. ये वीडियोस को आपको 2 बार करना है. फिर मेरे को बताइए कि आपको कैसा लग रहा है. चलिए मैं आगे चल रहा हूं. So now next is special deduction for SSC engaged in tea, coffee and rubber growing and manufacturing business. ठीक है, ये specifically is for SSC engaged in tea, coffee and rubber growing and manufacturing. ठीक है, ये सेक्शन इज 33AB रूल 5AC. इसके पहले जो सेक्शन था वो दैट वाज 32AD. ठीक है, तो इसके बाद वाले सेक्शन जैसे आप देखेंगे कि बहुत सीरियली नंबर्ड है, तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं जाएगा. चलो देन एप्लीकेबल टू ऑल एसएससीज. अच्छा चलो ठीक है, जो मैं बात बोल रहा था देन वो दैट वाज वो रुक गया. ठीक है, तो कल का जो क्लास हो जाएगा, 4 लेक्चर्स हो जाएंगे. इतने पार्ट का आपका पीजीबीपी का टेस्ट होगा. ठीक है, तो आप लोग यू विल ऑल टेल मी कि कितने दिन आपको चाहिए ये प्रिपेयर करने के लिए. ठीक है, सो इफ यू वांट, बीच का कोई एक दिन जो है हमारे संडे, मंडे, ट्यूसडे, एनी ऑफ दोज डेज आल्सो इफ यू वांट मी टू कीप टेस्ट, ठीक है, विदाउट कंटिन्यूइंग फर्दर, वो भी हम कर सकते हैं. ओके, वी कैन डू आल्सो. सो आप यू जस्ट हैव टू टेल मी कल तक, ट्यूसडे तक जो है जितना हो गया, whatever, I hope 4 more lectures will get over. ठीक है, apart from today's. तो आपको मैं बोल रहा हूँ संडे, मंडे और ट्यूसडे. ठीक है, अभी आपको कि हमको टेस्ट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे बिकॉज देयर आर अदर सब्जेक्ट्स आल्सो, उसके भी टेस्ट्स आएंगे. तो थोड़ा बहुत आप ओवरवर्कड होंगे, आई अंडरस्टैंड दैट, बट अभी टाइम ऐसा है कि हमको करना है. वी विल हैव टू डू बेटर देन व्हाट वी वर. तो अगले संडे, मंडे, ट्यूसडे में से कोई एक दिन आप चूज करके मेरे को बताओ. ठीक है, इफ यू आर ओके कि हमारा नॉर्मल क्लासेस ऑफ पीजीबीपी चलते रहे और फिर टेस्ट हो, तो आई एम फाइन विद दैट आल्सो. और इफ यू फील दैट किसी एक दिन चलो क्लास उस दिन रोक दिया जाए और उस दिन टेस्ट लिया जाए, ताकि आपको देयर वोंट बी टू मेनी थिंग्स टू डू. ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं. ठीक है, सो यू कैन ऑल जस्ट थिंक ऑफ इट और मेरे को बताओ आप ये तीनों में से कौन सा दिन बेटर है, और एनी अदर डे आल्सो इज फाइन. मंडे, नीरज, ओके, मंडे के लिए ऑल आर ओके. एवरीवन एल्स, नेक्स्ट मंडे पीजीबीपी का जो टेस्ट जितना हुआ है हमारा बस उतना ही. ये बहुत बड़ा चैप्टर है, एंड ऑफ द चैप्टर में फिर देन इट विल बिकम, आपको पहले का याद नहीं रहेगा. इसलिए टेस्ट जो है एटलीस्ट 2 या 3 टेस्ट लेंगे इसका, 2 और 3 टेस्ट, मे बी 3. ठीक है, तो फिर मंडे को हम क्लास नहीं रखेंगे आपका. ओके, ऑन मंडे देयर विल बी नो क्लास. उसी टाइम में आप पेपर कर सकते हैं. ठीक है, टेस्ट ऑन पीजीबीपी, ताकि यू कैन फोकस फुल्ली और आप पढ़ के देन यू कैन गिव द टेस्ट. ठीक है, पेपर मैं आपको दे दूंगा इसका
संडे नाइट को, ओके, संडे सीओबी, बेसिकली संडे रात को 11-12 बजे तक के मैं दूंगा पेपर आपको, ओके। यू विल हैव होल ऑफ मंडे, आपको करके मुझे देना है बाय 10 PM, ठीक है। गिव मी बैक द पेपर ऑन 10 PM, ठीक है, चलेगा? ओके एवरीवन, आप लोग टेस्ट देते जाइए, देखिए थोड़ा सा होगा नहीं होगा, दैट्स ऑल ओके, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। टेस्ट आप देते जाओ, आपको बहुत फायदा होगा इससे, एंड रिजल्ट में जो है इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। आप देते जाइए बिल्कुल, जो है ना, डोंट वरी, फाइन, गुड। चलो, नाउ ये हो गया आपका। चलो, दिस सेक्शन इज स्पेशली फॉर टी, कॉफी एंड रबर ग्रोइंग कंपनीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, इसमें आपको जो है ये बहुत शॉर्ट चीज है, ठीक है, कुछ ज्यादा ये नहीं है। हमको कुछ पैसे डिपॉजिट करना पड़ता है, एसएससी हैज टू डिपॉजिट सम मनी इन अ स्पेशल अकाउंट, ठीक है। सो उस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिया तो दे कंसिडर एज इफ ही हैज बॉट एन एसेट। यानी यहाँ पहले क्या होता था कि आप एसेट ले लो, से इफ आई नीड एन एसेट ऑफ 2 crores, you buy asset and then we will give deduction. So यहाँ ये बोल रहा है you deposit money in a special account, deposit money, ठीक है, 2 crores, ठीक है, और फिर बाद में you can use this account to buy your asset whenever required. तो जब आप इसमें डिपॉजिट कर दोगे तभी आपको ये मिल जाता है, you will get deduction when you do this deposit. यहीं पे आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। अब बाकी पर्पस के लिए आप ये पैसे यूज नहीं कर सकते, सो एनी केस एनीवेज इट इज लाइक, इसको आपने यू हैव डेडिकेटेड इट, ठीक है। सो और आपको भी यानी ऐसा कुछ नहीं कि आप ये पैसे डाल दिए, देन यू कैन ऑर्गेनाइज कैसे कैसे आपको बाय करना है एट डिफरेंट डेट्स, यू कैन ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंगली, ओके। तो बस ये इतना डिफरेंस है इसमें। तो वेयर टू डिपॉजिट, कहाँ पे आप डिपॉजिट करोगे? आइदर इन नाबार्ड बैंक, यू शुड हैव, आपको सुने तो होंगे जरूर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड बैंक, ओके। इन नाबार्ड बैंक यू कैन डेवलप, ओके, एक स्कीम होगा, ओके, स्कीम अप्रूव्ड बाय टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड एंड रबर बोर्ड, ये तीनों के बोर्ड से, सेंट्रल बोर्ड्स आर देयर, ओके, सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ टी, सो टी, कॉफी एंड रबर, so they will prepare a scheme. Based on that scheme, you will open an account in NABARD, okay. If you don't want to open in NABARD, then you can open an account in some other specified bank, okay, where central government has approved some banks for this purpose, so you can open an account there. Again, the scheme should be approved by tea, coffee or rubber board. So पहले और दूसरा पॉइंट में क्या है, कुछ भी नहीं है, either open in NABARD or in some other bank. Scheme should be approved by tea, coffee or rubber board. For other bank is, it should be a prior approval of CG is required, central government, ठीक है, because central government will say okay, this bank you can use for agricultural purpose, so आप open कर सकते हो। So we'll continue with this. You can join back at 9:40, ठीक है, 9:40 को आप join back कीजिए।